Hello students, today I am going to explain you the summary of lesson first of your textbook in Hindi and English both. मैं आज आपको आपके लेसन फर्स्ट की समरी हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगी. आपके लेसन का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी और जिसे लिखा है खुशवंत सिंह ने. द नेरेटर खुशवंत सिंह पोर्ट्रेस अ वुमेन इन दिस टेल. दिस वुमन इज नन अदर देन हिज ग्रैंड मदर. When the narrator was an innocent child, his parents left him with his grandmother and went to the city. The narrator described the grandmother and said that she was an old woman with many wrinkles on her face. She was thick and slightly bent. It was difficult for the narrator to believe that at one time his grandmother would have been a young and beautiful young woman. As the people around her said, the narrator then tells about his relationship with his grandmother. The narrator had a friendly relationship with his grandmother. His grandmother used to prepare him for school every day. She then used to go to school. There was a temple near the school where she used to study religious book. Then both went home and fed the leaves to the dogs of the street. कथाकार खुशवंत सिंह ने इस कथा में एक महिला का चित्रण किया है. ये महिला और कोई नहीं बल्कि उनकी दादी हैं. कथाकार जब एक अबोध बालक थे तब उनके माता पिता उन्हें दादी के पास छोड़कर शहर चले गए. कथाकार ने दादी का वर्णन करते हुए कहा कि वो एक वृद्ध महिला थी जिनके मुख पर अनेक झुर्रियाँ थीं. वे मोटी और थोड़ी सी झुकी हुई थी. कथाकार के लिए मानना कठिन था कि एक समय उनकी दादी एक जवान और खूबसूरत युवती रही होगी, जैसा कि उनके आसपास के लोगों का कहना था. कथाकार फिर अपनी दादी के साथ अपने संबंध के विषय में बताते हैं. कथाकार का अपने दादी के साथ संबंध मैत्रीपूर्ण था. उनकी दादी उन्हें विद्यालय के लिए रोज तैयार करती थी. उसके बाद उन्हें विद्यालय छोड़ने जाती थी. विद्यालय के समीप एक मंदिर था जहाँ वो धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करती थी. फिर दोनों घर चले जाते और गली के कुत्तों को रोटियाँ खिलाते थे. Then one day the narrator's parents called him and his grandmother to the city. The narrator has called this incident the turning point for his and his grandmother's friendly relation. Even now his grandmother's room was the same, but now both used to work. When the grandmother asked the storyteller about the curriculum of the new school in her city, she would say that modern science of English literature, to which her grandmother was said, did not teach religious text. She also objected that she was also taught music which she did not consider appropriate for a decent man. Now the grandmother's time began to pass in worship. She used to feed the birds with food. This time was the most favorite time of the day for him. When the narrator started studying in the university, his room was separated and his friendship with his grandmother became like a टेंट्रम. ही कंप्रोमाइज्ड द सिचुएशन. फिर एक दिन कथाकार के माता पिता ने उन्हें और उनकी दादी को शहर बुला लिया. कथाकार ने इस घटना को अपने और दादी के मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए मोड़ बिंदु कहा. अब भी उनका और दादी का कमरा एक ही था, पर अब दोनों में बातें कम होती थी. दादी जब कथाकार से उनके शहर के नए विद्यालय के पाठ्यक्रम के बारे में पूछते तो वे कहते आधुनिक विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य, जिससे उनकी दादी दुखी होती कि उन्हें धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा नहीं दी जाती थी. उन्हें इस बात पर भी आपत्ति होती कि उन्हें संगीत की भी शिक्षा दी जाती थी जिसे वो सभ्य पुरुषों के लिए उचित नहीं मानती थी. अब दादी का समय पूजा पाठ में बीतने लगा. वो पंछियों को दाना खिलाया करती थी. ये समय उनके लिए एक दिन का सबसे पसंदीदा समय हुआ करता था. जब कथाकार विश्वविद्यालय में पढ़ने लगे तब उनका कमरा अलग हो गया और उनकी अपनी दादी से दोस्ती का नाता टूट सा गया. उन्होंने हालत से समझौता कर लिया. When the narrator completed his university studies, he decided to go abroad for further studies. His grandmother was sad because he did not show her feelings. She went to the station, leaving him, and gave a kiss on the forehead of the narrator and left. The narrator considered this touch to be his final touch. But when the narrator came back home, his grandmother was waiting for him. Grandmother also spent her best time with the birds that day. One day's talk, when she did not recite the puja,
She started singing a hymn with the women of the neighborhood by taking a tattered drum and singing songs for a long time. One day, she fell ill and found her last time with her. During this time, even after the refusal of the family members, they started praying in their heart, while the family wanted them to talk to them. Then she departed from this world in a peaceful manner. She was cremated. Apart from the family members, the birds were also saddened by her departure. When the narrator's mother gave food to those birds, they did not accept it. जब कथाकार ने विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी कर ली, तब उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया। उनकी दादी इस बात से उदास थी, पर उन्होंने अपनी भावनाओं को नहीं दर्शाया। वे उन्हें छोड़ने स्टेशन पर गई और कथाकार के माथे पर चुंबन दे के विदा किया। कथाकार ने इस स्पर्श को उनका अंतिम स्पर्श समझा, पर जब कथाकार घर वापस आए तो उनकी दादी उनका इंतज़ार कर रही थी। उस दिन भी दादी ने अपना सबसे अच्छा वक्त पंछियों के साथ बिताया। एक दिन के बाद जब उन्होंने पूजा पाठ नहीं की, बल्कि आस पड़ोस की महिलाओं के साथ एक फटा हुआ ढोल लेके भजन और नृत्य करने लगी और कई समय तक गाने गाए। एक दिन वो बीमार पड़ी और अपने अंतिम समय को उन्होंने अपने पास समझा। इस दौरान घर वालों के मना करने पर भी वो मन ही मन प्रार्थना करने लगी, जबकि घर वाले चाहते थे कि वो उनसे बात करे। फिर उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से इस दुनिया से विदा ले लिया। उनका अंतिम संस्कार हुआ। घर वालों के अलावा वे पंछी भी उनके जाने से दुखी थे। जब कथाकार की माता ने उन पंछियों को खाना दिया तो उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। सो स्टूडेंट्स, आपका ये फर्स्ट चैप्टर फिनिश हुआ, जिसमें कथाकार ने अपनी दादी के साथ उनकी भावनाओं को रखा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मिलूँगी। बाय।